Maheen Shah. Hello Maheen, Hello assalamu Shahzad, alaikum. walaikum assalam. A very good afternoon to everybody. It's a happy camp out here at the PTV Sports Studio today. Yeah, exactly. And in addition to this, I think where the entire public is happy out there, I think what we really need to do over here is that we need to be in conversation with the legendary figure who has been right all through and through. And ladies and gentlemen, he made sure that whatever words come out of his mouth will actually turn into a truthful day for us. And I think that's exactly what we certainly want to share with him. The prodigy himself, the one and only Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. How are you? By Islam, by Islam. How do you feel? I feel like a billionaire. You feel like a billionaire. That's wonderful. How do you feel knowing that Pakistan has achieved a milestone in years' time? So after 2021, this is the first win that we have had over here. Since 2015, we didn't win a series against England, and finally we are here. Let's talk about what happened during the series. Yeah. First test match, team changed, Yeah. Batting wicket. attitude. Yeah. Yeah. Team changed, attitude changed. Yeah. Fast bowlers changed, replaced by spinners. All of a sudden, the team found themselves in a very happy groove in terms of, yeah, let's create a chance and we're going to win the series. True. Oh, who provided that chance? Akib. Yes. The curators. And there is some odd guy who was not in the picture at least 2.5 weeks ago. Literally 14 days ago, he was not in the picture. He actually gave a glimpse of the hope in terms of, yeah, we can win this test match. Was Sajid Khan. Noman is always there, but he was missing the partner. True. Team changed, batting changed, attitude changed. All of a sudden, team start to winning it. Now, what happens after that? The spinner takes charge. We see, good thing is that the management have taken, as I said it before, procedure wasn't right, but the decision was. We sent a very strong message to the team, Aqib Javed, and the rest of the management and the management within the team. Listen, no macking around here now. No more jokes around here now. We need to win this. Good thing, जब आप stuck हो जाते हैं, you're left with the no options. And the 100,000 other options opens up for you in terms of when you come, hit a straight wall and then you think, यार अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? अच्छा नहीं हो गया, fast bowler injured हो गए. Spinners आ गए. Though I don't like that the scenery of the match, कि जहाँ पे fast bowler ने एक ball नहीं किया और 20 की 20 विकेटें. Spinners रह गए. Back-to-back matches में. Exactly. That's not what I like to see. True. It is fine for the home series. It is okay for a home series. But Australia में क्या हुआ? True. You see, that is the problem. Now, we got to create the balance. Okay, first hurdle out of the way यार कि हमें जीतनी थी टेस्ट सीरीज. हमें क्या करना चाहिए था? हमें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए थे. स्ट्रिक्ट डिसीजन आ गए. आज शाम को भी स्ट्रिक्ट डिसीजन आ जाएंगे. आप ना कैप्टन रहेंगे ना आप टीम में होंगे और शायद you not be touring to Australia. It can happen. But at the same time, you see, you have to think about it. Okay, this is a very happy bunch of people in the dressing room, including the character like Noman. Noman is a good character too. उसका character भी बाहर आ रहा है. Yeah. He was the most happiest guy in the dressing room. Yes. Along with Sajid, he just given the hope. Again, इस पूरे टेस्ट मैच को बचाने में साउद शकील का बहुत हाथ था. True. Agreed. और शान की भी पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी. बट इमेजिन उसको कन्वर्जन में कौन ले गया? टू टेलेंडर्स, नमान और साजिद, विद ग्रेट कैरेक्टर्स. देयर कैरेक्टर्स. उन्होंने कहा नहीं यार, हमने थोड़ा ये भी करना है, मजे भी ले रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं और लीड को ऐड भी कर रहे हैं. वही लीड पल्ले पड़ गई इंग्लैंड के. ऐसे ही हुआ. और दूसरी बात यह है कि आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट हैज क्रैक्ड द कोड ऑफ प्लेइंग द होम सीरीज. कि अब हमने आगे जीतने कैसे हैं. Home advantage. होम एडवांटेज में जीतने कैसे हैं. स्पिनर 3 अच्छे खिलाने हमने, 2 फास्ट बॉलर के साथ, जो अब 2 बैटिंग भी कर सकते हैं. स्पिनर बाय द वे दे आर प्रॉपर बैट्समैन. बिल्कुल. Exactly. सो अब पाकिस्तान को एक कोड क्रैक हो गया. अब नाउ इंटरनेशनल सर्किट में पाकिस्तान को क्या करना, वहाँ दे विल स्ट्रगल. नाउ जो हाइप बनी हुई है, इस हाइप को
बैलेंस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलना पड़ेगा. We're not going to talk about that right now, but you need to find a right balance. Now, again, it's going to be very tough selection in the evening. It's going to be very tough announcements. Yeah. But Pakistan, what they have done today, it was just amazing. Exactly. Thank you so much. You know, आपने इसको इतने बड़े खूबसूरत अल्फाज में पुट भी किया और उसके बाद क्रेडिट भी दिया where it's due. लेकिन वहीं पे ये एक सवाल ज़रूर बनता है. दो सवाल बनते हैं टेक्निकली. देखिए, जब आप एक भी डिलीवरी नहीं करा रहे अपने पेसर से जिसको आपने इंक्लूड किया है, तो आपने अपने बैटिंग ऑर्डर को क्यों नहीं लेंथी किया? नंबर 1. नंबर 2, आप बात करते हैं बिशान मसूद ने पोस्ट मैच में ये जिक्र किया कि जी अगर कल को श्रीलंका हमारी होम सीरीज में आएगी तो हम सोचेंगे कि यार हम कोई और पिच बनाएं. हमने बांग्लादेश की जो हमारी लॉस थी वो ऑब्वियसली हमने उससे लर्न किया. विल कम बैक विद दैट. जो अब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, बांग्लादेश या श्रीलंका इस सब कॉन्टिनेंट में वन ऑफ टीम्स होंगी और सब होम नहीं खेलने आ रहे होंगे. बट डू यू थिंक दैट यू नो फॉर दिस टीम जिसको आपने कहा ड्रेसिंग रूम में अच्छा है और 3 लड़के ड्रॉप होने से एक माहौल बहुत खूबसूरत बन गया है, डू यू थिंक दैट दे विल बी एबल टू कैरी इट फॉरवर्ड जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं? देखिए यार, अभी कोई प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी. हाँ. आप सीरीज जीते हैं जी. अभी ये तो नहीं हुआ कि आपके दुनिया के वर्ल्ड बीटर्स बन गए. 2015 के बाद हाँ, इंग्लैंड के वर्ल्ड खिलाफ. बीटर्स नहीं बने. यू हैपेंड और लकी टू विन दिस सीरीज. यू जस्ट लकी टू विन दिस सीरीज. एंड वो भी प्रोटेजी कह लें, आप कर्टेसी टू साजिद कह लें, एंड देन kamran गुलाम का 100 कह लें, तो आप साउद का कह या लें. साउद साउथ का का बाद में आता हूँ. साउथ का तो ये बहुत क्रिटिकल, ये पूरा टेस्ट मैच तो वही बना के गया है ना आपका. वो तो 150 ना करता, 34 किया था ना उसने. बिल्कुल. तो अगर वो ना करता तो काम तो खराब था. हाँ. लेकिन बट जिस तरह उसका साथ दिया गया है लंडर्स के साथ, वो बड़े अच्छे कैरेक्टर्स है दोनों. बट थिंग इज आपको वर्ल्ड बीटर नहीं बन गया. देखें, अब डे टू डे बेसिस में आपने ये चीज़ें तो जीत ली हैं. अब आपको अच्छी टीम बनना है, बेहतर टीम बनना है. मेरे ख्याल में मैनेजमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इट ठीक है. टू मेक दिस टीम बेटर. अब जो भी डिसीजन वो लेंगे वो बेस्ड ऑन स्टारडम पे नहीं लेंगे, बेस्ड ऑन तुम्हारी रेपुटेशन पे नहीं लेंगे, बेस्ड ऑन एक चीज़ पे लेंगे वो डिसीजन कि भाईजान आप कितना अच्छा पाकिस्तान टीम के लिए करके दे सकते हो, नो मैटर हु यू आर. True. And if you're not up for it, we are not going to be up for it for a selection. That is going to be a problem for you. Yeah. So the problem is now the Pakistan team has to face Australia now within Australia. मैं कल drop in pitches देख रहा था. जी. Now there is going to be a seam, and there's going to be a bounce, and you know it's going to be a problem, Yeah. and it's going to be a problem. तो आपने इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है इससे. अब ठीक है, लेकिन all I wanted to see is a gutsy team, Pakistan team player who is actually fighting it out जी. against Australia. That's all. वो भी और कल भी आपसे पोस्ट मैच में जो मेरी डिस्कशन हो रही थी और आज सुबह भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, और आपने कहा था कि हाँ, आमिर जमाल को कहीं ना कहीं चेंज ऑफ पेस में उसको एक आध ओवर करा लेना चाहिए, क्योंकि गस एटकिंसन प्रूव्ड हिमसेल्फ फॉर इंग्लैंड और उनकी ऑब्वियसली पेसी डिलीवरी आज थी. नहीं बनता था, आज नहीं बनता, पहले नहीं बनता था. अब मतलब इस टेस्ट में तो उनको मौका ही नहीं दिया गया ना, उनको खिलाया ही नहीं गया. सो दैट इज ऑब्वियसली अ मैटर ऑफ कंसर्न. अब यार ये सोचने की बात है कि अब हमने करना क्या है आगे. हमारे वो तीन कौन से फास्ट बॉलर हैं जो हमारे साथ चलेंगे. अब उन 3-7 फास्ट बॉलर के साथ बैठना पड़ेगा मैनेजमेंट को बात सुने. ये मजाक नहीं चलेगा. True. अब आपको ये 25-30 ओवर 40 ओवर करने पड़ेंगे और आपको इस पेस पे करने पड़ेंगे. देखें, दे गोना बी वेरी रूथलेस. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, दे गोना बी वेरी रूथलेस विद द फास्ट बॉलर्स. कि अगर आपने T20 फॉर्मेट भी खेलना तो वो इसीलिए खेलेंगे कि आप ये पूरा करके दें. एग्जैक्टली. और मैं इस बात की जानिब आना भी चाहूंगा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो शुएब भाई ने बात की कि शाम को जब लिस्टें आएंगी या नाम आएंगे, जब अनाउंसमेंट होगी, तो शायद जो कप्तान है कप्तान भी नहीं होगा, शायद हो सकता है ड्रॉप भी हो गया हो. हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड. सो आई थिंक आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए. सबसे पहले वेरी क्विकली सर, लेट्स टेक अ गुड लुक एट द मैच समरी एज वेल. यू नो, हाउ डिड इट एक्चुअली गो? यू नो, द लास्ट टेस्ट, द थर्ड टेस्ट इन बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. इंग्लैंड ने टॉस जीत कर सबसे पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. 267. स्मिथ का 79 जो है 89 was very handy and साजिद with 6 of 128. पाकिस्तान आता है वापस, ऐसा लगा कि स्ट्रगल करेगा क्योंकि डे एंड होता है जिसमें हम 3 विकेट्स गवा चुके होते हैं. वो साउद जो शुएब भाई की मुझे यहाँ पे बात आई कि यार अपने लिए कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो, 150 कर लो, वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा दे जाएगा. वो ये फ़ायदा 134 223 गेंदों पर वाकई दिया. रेहान was instrumental 4 of 66. Then obviously England comes back, couldn't really do well. It was Noman 6 of 42 rising to the occasion, and then towards the end it was Shan and Pakistan winning by 9 wickets and winning the series 2-1 after 2015 against England. And not just that,
2021 के बाद अब हमें ये विक्ट्री होम पे देखने को मिली। बात बहुत अच्छा हो गया यार, ज़बरदस्त हो गया, वेल डन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अभी जब हम जो बात कर रहे थे बात कप्तान चेंज करने की, देखिए यार, मेरा अब मुझसे अगर पूछते हैं आपकी राय? अब ऑस्ट्रेलिया टूर ये तो आपने कर लिया हो ना, गया। स्पिनर्स के जरिए आपने फंसा लिए, गोरा स्पिन को नहीं खेल सकता। अब जल्दी से इस चीज को रैप अप कर लेते हैं। देखो यार, कौन सी ऐसी खतरनाक बॉलिंग हुई है जो इंग्लैंड ने सर्वाइव ही नहीं किया? कौन सी ऐसा उसने वो कोई इतना शार्प टर्न हो गया है, कोई ऐसा अनऑर्थोडॉक्स। बाय द वे, मुल्तान का विकेट भी इतना कोई बुरा नहीं था, वहां स्कोर हुआ है। अच्छा, ये भी कोई इतना बुरा विकेट नहीं था, यहाँ भी स्कोर हुआ है। अच्छा, अगला कोई बंदा को 150 करता है, वो भी सेकंड इनिंग्स में 150 करता हो, तो भाई स्कोर तो कर रहा है ना। वो कैसे कर गया? अगर जेमी कर सकता है बिल्कुल, तो स्कोर तो हो रहा है। कर सकता अच्छा, है। ठीक है, हो गया। But देखें यार, you have to understand this, that England did not play a very good cricket. They didn't. They didn't. But that simple as that. I mean, a great guy. Ben Stokes is a great leader. He's a great guy. He wants Test cricket to be improved. Even they're losing it, but at the same time, आप अपनी performance as a captain, as a batter, it's also going down. It's not good Yeah. for you guys, but it's good for Test cricket. But England did not play well, and that is very simple as that. Moving forward now, within 6 to 7 days, you need to go to Australia. Yeah. And you need a best batter. And my take is on Babar Azam, you may kick him out of the side. जो मुझे लग रहा है इस वक्त उसको कप्तानी से भी हटा देंगे और टीम से भी निकालने के चक्करों में उसको. I believe they shouldn't do that. Okay. अगर उसको टेस्ट ही करना है या उसको in other words सीधा करना है आप लोगों ने, यही है ना. बेसिकली उन्होंने पहले टेस्ट उठा के बाहर इसलिए फेंक दिया कि लिसन, दिस इज द मैसेज फॉर यू, सीधा होना है कि नहीं होना. ये मैसेज था. दैट इज वेरी रूथलेस थिंग टू डू बाय द वे. जी. और अगर आपको टेस्ट अपना वनडे सीरीज में आगे जाना है, आई एम फुली गोइंग टू सपोर्ट बाबर आजम. आस्क मी व्हाई. Why? Sure, go ahead. बिकॉज टेक्निकल फ्लॉज हैं, ये हैं वो हैं. ऑस्ट्रेलिया में उसने रन्स किए हुए हैं, वो खेला हुआ है. मिडिल ऑर्डर में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, आप उसको स्ट्रिक्ट हो जाएं, आप उसको निकालने का सोचें, आप सारा कुछ करें. आई एम ऑल फॉर इट. दैट्स फाइन, दैट्स योर प्रोगेटिव, आप कर लें. लेकिन यू नीड योर बेस्ट बैटर. Yeah. True, we do. I think you need a best batter. जी. It's going to be a wrong mistake to not to pick him. अच्छा, इसमें जो दो You चीजें. can't make him a captain. That is fine. I got that. ठीक है. But dropping him all of a sudden with everything, and that too in Australia tour, that's going to be a That's wrong going to mistake. be a It's mistake. tough. It's going to be tough. एक तो बाबर आजम की आपने बात की. another player जिनकी खबरें सुनने को आ रही हैं और अपेरेंटली कहा गया कि जी उनको भी नहीं फखर जमान, अपेरेंटली फखर को भी नहीं लेके जा रहे, उनको खिला भी नहीं रहे. Again. फखर इज वेरी गुड इन ODIs. Bad mistake. Apparently Honestly, उनके he's a साथ good भी opener. बाबर मिडिल में आए, ओपन नहीं कर सकता. बाबर को he has to finish the matches. Now listen, if I was बाबर, मैं देखो यार, जो बंदा डाउन एंड अबाउट होता है उसको सारी बैश करना अच्छा लगता है उनको. लेकिन आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल दैट when डाउन एंड अबाउट. मैं यही कहूंगा, बाबर इज गोइंग टू बी अ टफ टूर फॉर यू इफ यू गेट पिक्ड. Yeah. बट तुम्हें वो नंबर नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो खेलना. देखो, ये अभी होंगी प्रॉब्लम्स. अब आपको अब ऐसा नहीं होगा वॉक इन द पार्क, और जो आपने बुले लूटे हैं 3 साल, उस तरह आपकी मर्जियां नहीं चलेंगी. अब आपको उनकी मर्जी से चलना पड़ेगा. अब उनकी आपको थोड़ी सी नाराजगी सहनी पड़ेगी, उनके मूड स्विंग सहने पड़ेंगे. नंबर नहीं मिलेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेगी, लाड नहीं मिलेगा. बट ही हैज टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी समहाउ इन बिटवीन इन दोज लाइंस. यार, अब जो भी मुझे तीसरे चौथे पे खिलाते हैं, नॉट एज अ ओपनर, अब मुझे हैव टू परफॉर्म. एंड इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट टफेस्ट टूर दैट ही हैज टू फेस. और यही वो टूर है जो उसको बनाएगा. यही वो टूर है जो बाबर को वापस लेकर आएगा, वापस नंबर 1 बैट्समैन बनाने में कामयाब. सर, ये इट्स अ टफ सिचुएशन. इस टफ सिचुएशन में अगर वो खुदा न खास्ता पिक नहीं होता, लिसन, ये डाउनवर्ड्स और चलता जाएगा. ये स्पाइरल है, ये डाउनवर्ड्स हो जाएगा. फिर अगर ये जाता है, टीम को अच्छे तरीके से बात नहीं करेगी. आई मीन, आई नो फॉर अ फैक्ट कपल ऑफ गाइज एंड 5, 6, 7, 8 गाइज आर नॉट इन गुड टर्म्स विद देम. मुझे 93 का वर्ल्ड कप है, वसीम अकरम से कोई बात नहीं करता था. ठीक है, होल टीम वाज सेलिब्रेटिंग समवेयर एल्स एंड ही सेलिब्रेटिंग समवेयर एल्स.
So, but for him to battle it alone, he has to go out there in the store and prove himself in the middle order that I also can score runs, Yeah. and I also can win matches. Fakhar as an opener Yeah. बहुत अच्छा खेलता है. उसको तो वो तो पूरा कंसेक्यूटिव फीचर में होना चाहिए. इन T20 में गलत किया उसके साथ. उस बेचारे का दिमाग घुमा कर रख दिया उन्होंने. एंड कर्टिसी टू, मैं जरा यहाँ पे तस्करा करना चाहता हूँ. कर्टिसी टू, यार वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है. हाँ. वो ओपनर, उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है. ओपनर एज उसने कितना खेला है. T20 में वो पहले 6 ओवर अच्छे खेलता है, फिर वो स्पिनर को लूटता है बीच में. मैच भी तुम जितवा क्या देता है. कर रहे हो यार. उसका दिमाग घुमा के रख दिया. अच्छा भला आदमी है वो, अच्छा भला वो क्रिकेटर है. Yeah. उसको घुमा के कभी वन डाउन, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे. खुद ओपनर आ जाते हो. हाँ जी, प्रॉपर ओपनर आपको बाहर बैठा. बट आई रियली थिंक यू नो द बाबर एंड फखर शुड गो जी. टू दिस टूर एंड टू क्रिएट सम मैजिक. थैंक यू सो मच सर फॉर सेइंग दैट. जितने भी लोग जो देख रहे हैं शायद हो सकता है उनको इस बात का इल्म ना हो, लेकिन मैं जरा बैक स्टोरी बता देता हूँ. फखर एक्चुअली जम्प्ड इन सपोर्ट ऑफ बाबर आजम के जी इस तरह ड्रॉप नहीं करना चाहिए था. जैसे हमने भी तस्करा किया था कि सीरीज के बाद आप फैसला लेते. ठीक हुआ जो भी हुआ, तरीका ठीक नहीं था जैसे शोएब भाई ने कहा. लेकिन he has no right to say this. He has no right to say this, Fakhar Zaman. ठीक है. दूसरा He उसने is शो कॉज under the नोटिस दिया central उसको. contract. He cannot make a suggestion. जी. और दूसरा ये भी बात है ना कि ये लोग एकदम से दे स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया, दे स्टार्ट नहीं ट्वीटिंग. यार, एक तो इनकी स्ट्रेटजी होती थी ना, ये सारे आपस में मिले होते थे लड़के कि वी बैक किंग बाबर, तो ये तो वो शदाब भी लगा हुआ, तो वो भी लगा है. ये छोड़ दे, पुरानी स्ट्रेटजी होंगी. तो हम सबके एजेंट एक है, सब भी एक ही ट्वीट कर रहा होता है. ट्वीट सब और की इसमें अगर और एक ही कर रहा addition भी होता है. समझे ना, ये स्ट्रेटजी सारी पुरानी हो चुकी हैं, सबको सब पता है. इसमें एक और एडिशन भी है. एक और एडिशन ये है कि ये कहीं लीग खेलने के लिए गए, इजाजत लेकर गए, वहां पहुंचते हैं तो उनको एनओसी नहीं मिलता है. ये उस्मान वाला के हवाले से बात वो तो गलत है ना, जो डायरेक्टर वो तो गलत है, वो गलत है. अब किसी भी क्रिकेटर के पास अपने ग्रीवियंस के लिए को आउटपुट के लिए जगह तो है नहीं, को प्लेटफॉर्म तो है नहीं. वो क्या यार, बट यू हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट ना. तो बस खत्म हो गया. आप एज फ्रीलांसर खेल रहे पाकिस्तान से, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, मंथली नहीं लेता आपसे, वो भी आप नहीं कर सकते हो ना. बात यह है कि यू आर अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ सेइंग नथिंग. ट्रू. सो वंस यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट देन यू डन. ओके, बट देखें अननेसेसरी बैक करना, अननेसेसरी. देखिए, ही हैज, आकिब जावेद हैज ऑल द प्रोगेटिव टू सैक बाबर एज अ कैप्टन, व्हिच इज फाइन विद मी. आई एम ऑल फॉर इट. देखिए, मैं तो हमेशा ऑल फॉर द राइट डिसीजन में होता हूँ, बट वो ठीक है, कर देगा. लेकिन मैं आकिब जावेद को ये भी मशवरा दूंगा, देखिए यार, जहन में रखना ऑस्ट्रेलिया भी है, जहन में रखना है. अब इन पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल दो भाईजान, जाओ और करो, अब करके दिखाओ. ज्यादा ना हो जाए. हाँ, नहीं, अब करके दिखाओ. ठीक है. डाल दिया ना सिचुएशन में आकिब जावेद ने. इफ आई वाज आकिब, आई वुड डू दिस. आप कप्तान नहीं है, चौथे पे खेलेंगे. प्रूव योरसेल्फ. Prove yourself all over again. If you think that you're worthy of playing for Pakistan, which he is, एब्सोल्युटली. ठीक है ना. फखर पश्तून है, बोल देगा यार, वो उसका वही इमोशन का नाम है पठान, वो बोलता है, लेकिन नहीं करना चाहिए. ठीक है. बिकॉज उसको नहीं समझ. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग विद इन द मैनेजमेंट इज वेरी अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ बाबर. ठीक है, बट बाबर इज अ गुड बैट्समैन. ठीक है ना. हमने उसको ज़ाया तो नहीं करना ना, मारना तो नहीं है जान से, हमने उससे काम लेना है ना. अब काम कहाँ से देंगे, हम काम कैसे देंगे? सबसे मुश्किल टफ सिचुएशन में डाल देंगे उसको. हाँ. चलो जी, आ जाएं, अब करें, तो वहीं से तो वो बनेगा दोबारा. ट्रू. मैं तो सिचुएशन से ना भागता, क्या विराट कोहली जब सैक किया था, उसने ये कह दिया था कि यार कि मैं अब पाकिस्तान इंडिया के लिए नहीं खेलूंगा. नहीं. उसने क्या किया? स्कोर किया ना. ट्रू. स्कोर ही किया ना. और जिधर मर्जी भेजा, जिस मर्जी नंबर पे भेजा, उसने कहा करना ओके. पड़ा यार, करना पड़ा. एंड अनदर थिंग दैट आई हैव नोटिस, मैंने नहीं देखा कि किसी और टीम में या किसी और जगह पे एक दूसरे को, वो अगर एक प्लेयर गिरता है तो बाकी सब उसके सपोर्ट में आ जाते हैं. देयर इज अ स्पेसिफिक मीडिया स्ट्रेटजी एंड दे फॉलो दैट. ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि आज भी जो ये तो 3-4 साल से ना, इन सारे प्लेयर्स का ना एक ही एजेंट है, वो एक ही सारे ट्वीट करता रहता है पीछे से, वी बैक यू किंग बाबर, बैक को खराब किया उन्होंने. खालिद फैन बेस फॉलोइंग ने बाबर को खराब किया. अब फैन बेस फॉलोइंग ने क्यों नहीं सामने आते हो? आप टेस्ट सीरीज जीत गए हैं,
एक पूरे जो मैं मीडिया के सर्कल से बात कर रहा हूँ, कहते हैं यार बहुत अच्छा हुआ, एक बंदा निकला है तो पूरी टीम सेट होगी। ये बात तो गलत है कि जी वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही थी, फेवरिज्म हो रहा था, सही लड़के नहीं आने दे रहा था, ये हो रहा था। देखो ना, ये बातें तो हो रही हैं। और दूसरा, तुम अपना वो पूरा प्रोपेगेंडा मीडिया पीछे लगा देते हो कि भाईजान किंग को कुछ नहीं कहना। ओ भाई, क्यों नहीं कहना? किंग बाबर आर्मी। आपका आपके मुल्क क्यों खेल रहे हैं यार, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या मतलब आपको कुछ नहीं कह सकते? क्या मतलब टेक्निक में फ्लॉज मैं ठीक नहीं कर सकता? क्या मतलब आपका? आप सीधे हो यहाँ पे। Agreed. अगर आई थिंक अगर जो मैसेज अगर उन्होंने भेजा आज शाम को, it can be a very strong message by the Aqib Javed and Pakistan Cricket Board. Agar they sacked him as a one-day captain and they don't take him out to the touring party, that's going to be a very, very strong message once all over again. Exactly. That means is that he needs to create his place within a team in times to come, and that also looks difficult. Yeah. True. With this management, it's going to be a problem. But I am against that decision. आई एम इन फेवर ऑफ बाबर आजम को मुश्किल सिचुएशन में भेजो, Playing in Australia. और फखर को भेजो। एंड आकिब आई थिंक इज अ सेंसिबल गाय, बट आई होप कि इतना ज्यादा गुस्सा न करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि बिल्कुल ही शाम को ना सब कुछ ही कर दे। बट डिसीजन हैज बीन मेड ऑलरेडी। आई नो द फैक्ट फॉर अ फैक्ट क्या डिसीजन हुआ है मैं बताऊंगा नहीं। बट मुझे यहाँ एक कंफ्यूजन है, आकिब जावेद अभी तक किसी ऑफिशियल पोजीशन में तो नहीं है फ्रॉम पीसीबी साइड। ही इज एवरीथिंग नाउ। अच्छा, आफ्टर विनिंग द सीरीज ही इज एवरीथिंग। सिर्फ रिजवान की कर जहाँ पे वकार भाई को होना चाहिए वो आकिब जावेद में। असल में जब से ये सिलेक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो कोई एक चेयर नहीं सिलेक्टर की बनाएगी, सब मिलके करें। बट थैंक यू सो मच फॉर कंक्लूडिंग इट सो नाइसली एंड व्हाट पाकिस्तान रियली नीड्स टू डू मूविंग अहेड। कमिंग बैक टू द गेम, जब आपने इंग्लिशमैन की बात की, आई थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स दैट दे प्लेड मेड बी रेहान और मेड बी शोएब। आई थिंक उनको रेहान मिल गया ना जी, रेहान मिल गया उनको, एज अ बैटर भी मिल गया, एज आपको बॉलर भी मिल गया। लेंथ थोड़ी ऑड है उनकी, लेग स्पिनर की लेंथ का मसला पड़ता है, वो कभी एक आधा पीछे बॉल पड़ी था, बट ही वाज अ लेस एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली। पहला टेस्ट मैच खेले हैं, 66 रन दिए, 4 आउट के 5 भी कर सकते थे। शोएब हैज टू वर्क, which is why I'm going to show you how Sajid actually bowled and then kind of have a fair balance in between where सब कॉन्टिनेंट का है ना, वो तो यहाँ रोल के Yeah, that's true. उसको तो पता है। तो वो इसलिए इंग्लैंड ने बुरी क्रिकेट खेली बेसिकली, यू नो, बिकॉज़ उनकी बैटिंग डिड द जॉब बट दे वर नॉट एबल टू गेट द 20 विकेट्स। अगर हम हालांकि मैचेस की बात साजिद ने करते हैं, इतनी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कोई बॉलिंग नहीं की जितना ये गंदा खेले हैं। फिर ना एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए, मैं आपसे कहूंगा कि आप शायद अपने इसको पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं कि अगर पाकिस्तान में पिंडी में मुल्तान में साजिद ने अच्छा परफॉर्म किया तो जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट होगा तो साजिद का जाना भी जरूरी है, क्योंकि जी पिंडी में विकेटें ली। नहीं देखे ना यार, वहां पे तो सारे टैलेंट का टेस्ट इसलिए होना, उन्होंने खोल के रख देना सब कुछ, उन्होंने मार मार के आपका भुरता निकाल देना है। लेकिन ना वो ऑस्ट्रेलियंस हैं, ठीक है ना, उस टूर पे बॉल इधर नहीं आएगा, इधर आता है। और राहुल ड्राइवर, हमारी वर्ल्ड सीरीज हो रही थी तो राहुल ड्राइवर कहता है मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करा दो, तो आगे बॉलिंग कर रहा था। मैंने कहा यार इधर ना कर, तू इधर की प्रैक्टिस कर, उधर तुझे बॉलिंग करेंगे, ये नीचे इधर नहीं आना बॉल। ये ऑस्ट्रेलिया है। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया गोना बी अ ह्यूज टेस्ट एंड डिमोरलाइजिंग वन होगा। लेकिन पाकिस्तान अगर पुट टुगेदर द एक्ट अलॉन्ग विद आकिब जावेद, आई थिंक ही शुड बी अ पार्ट ऑफ टूरिंग पार्टी होना चाहिए उसको। आई थिंक विल बी अ ग्रेट एडिशन। और वो तो टिट फॉर टैट होगा आकिब जावेद, वो टिट फॉर टैट होगा। लिसन यार, मुझे परफॉर्मेंस ही चाहिए, मुझे ये नहीं हार जीत का बाद में देखूंगा, पहले मुझे अपने वो स्किल सेट है ना वो दिखाओ ग्राउंड पे, वो क्यों नहीं हो रहे, वो टीम के लिए क्यों नहीं हो रहा। तो वहां से रिजुविनेट होगी पाकिस्तान टीम। अगर पाकिस्तान टीम क्लोज आती है, क्लोज टू विनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो देखो टीम बन जाएगी आपकी। अगर आपके फास्ट बॉलर परफॉर्म कर जाते हैं, बाबर परफॉर्म कर जाता है, फखर कर जाता है, आके वहाँ होता है, हमारे स्पिनर बुरा नहीं है साजिद T20 के लिए, बुरा नहीं होगा अभी ना, लाइक फॉर 10 ओवर्स के लिए। अभी इसके बेचारे की बॉलिंग कर करके जान खत्म हुई थी, हाँ, थक गया, उंगली छिल गई होगी सब कुछ यार, तो वो बेचारा थक गया होगा, कल टांके भी लग गए थे। हाँ, तो बात ये है कि वुडंट बी अ बैड एडिशन, लेकिन इसके लिए भी टेस्ट होगा ना। स्पिनिंग ट्रैक से आ जाओ बाउंसी ट्रैक के ऊपर, स्किडियर ट्रैक के ऊपर आ जाओ, देखो उस पर इन्वेस्ट तो हमने करना है ना, उसकी फिटनेस पे, उसकी बॉलिंग पे। आई थिंक इट्स गोना बी अ ह्यूज टेस्ट फॉर एवरीबडी, अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट, टैलेंट, बाबर, फखर, एवरीबडी, इट्स गोना बी अ ह्यूज टेस्ट। बट आई थिंक डू द राइट थिंग, be the right guy for saying for Aqib Javed.
do the right thing, you know, what you think is right, do it. और कोशिश करो अगर यार पाकिस्तान टीम को यहाँ से देखो कितना मोराल अच्छा बेहतर हुआ। Exactly. अगर यही कहीं हम जाते साथ पहला वनडे उनको फेंक देते हैं और 2-1 कर देते हैं उनको, एक बात मैं करता हूँ, तो क्या आप समझते हैं कि यार पाकिस्तान टीम का मोराल और पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस कितना बहाल हो जाएगा? बट यहाँ एक और चीज है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बैलेंस तो होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं, और मैं तो कह रहा हूँ फेंटा लगेगा हाँ। मैं उधर जाके, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो वेट कर रहा ट्रेविस हेड, ठीक है ना, तो वेट कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो आपको रखना ही उन्होंने इधर ही है, इधर तगड़ा तो इधर समझिए बात मेरी, वो होगा आपके साथ, लेकिन आपने कैसे डील करना है इस चीज को, अब उसके लिए इनको हेल्प चाहिए बच्चों को। और बच्चों को मेरा ख्याल में एक सीनियर बैट्समैन ऊपर भी, फखर भी और बीच में भी, बाबर आपको चाहिए होगा प्लीज। ठीक है, आपने अपना मैसेज दे दिया, रजिस्टर करा दिया आपने चीज कि दैट वी नो लिसन यू नीड टू गेट द मेमो, True. so this is the message for you and a strong one. If you're going to get your act right, you can come back in the team. You're going to do the performances, you'll stay in the team, but otherwise there's going to be no place. But having said that, you know, Babar needs to react positively with the bat. And that's exactly what needs to happen as well. You know, where शोएब भाई ने वेट करने की बात की, हम भी थोड़ा सा आपको वेट कराना चाहते हैं जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद. We certainly speak about, you know, moving ahead from here onwards. Australia के लिए, you know, they'll go shorter deliveries. We certainly want people or batters who have got a skill of hook or a pull. Not just that, will the spinners work over there? You know, for our pacers who are actually bowling at 125 and 130, would it be useful for all of us? The T20 World Cup we played in USA, you know, just this year around as well. With all the shorter deliveries, our batters were biting the dust. Will we be able to catch up? I think that's a question right after a short break. Will Noman be effective? We'll carry on from here onwards. Game on air. Ladies and gentlemen, welcome back to a very happy studio at Game On है here, जहां हमारे लिए बहुत एक खुशी का मकाम है कि पाकिस्तान इतने अरसे बाद एक टेस्ट मैच जीता है, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं अब ये भी सोचना पड़ेगा कि जी अब आगे हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए। पाकिस्तान ऑब्वियसली एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगा वो मैच खेलने के लिए, बट टीम सिलेक्शन और ऑब्वियसली स्क्वाड सिलेक्शन, सारा कुछ जो टफ डिसीजंस टेस्ट मैच में हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ चेंज लेके आई थी। अब देखेंगे कि वाकई आगे जो हमारी इंटरनेशनल सीरीज आ रही हैं, जो पाकिस्तान ऑब्वियसली अब टूर करेगा, कि उसमें क्या ये हमारे लिए काम कर पाएंगे क्या नहीं। बट लेट्स नॉट टेक राइट अवे फ्रॉम साजिद एंड नोमान एंड ऑब्वियसली द पाकिस्तान टेस्ट टीम, कंग्रेचुलेशंस टू देम। सो while we're on this, let's have a good look at how Sajid bowled today, how Noman bowled today, and how they actually bowled towards Pakistan's victory in this test series. So बढ़ते हैं और देखते हैं जी कि उनकी किस तरह की नोमान की जाने बढ़ते हैं, नोमान की जाने absolutely ऑर्थोडॉक्स की हम बात कर, फीचर किस में किया जा सकता है, देखिए ही इज सीमेंटेड हिज प्लेस इन टेस्ट क्रिकेट। अब हमने इसको कैसे वनडे में लाना है, साजिद को डालना है, अब हमें अब ये छोड़ दे सारी डिस्कशन, अब हमें टीम सिलेक्शन के ऊपर सिलेक्शन कमेटी की सिलेक्शन को हमें देखना होगा, जज करना होगा कि वो क्या करते हैं। तो एक बेसिक फार्मूला शोएब भाई, फर्ज करेंगे अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वनडे क्रिकेट की बात करें, कितने पेसर्स कितने स्पिनर्स खिलाने चाहिए? बट यहाँ मेरा एक और सवाल बनता है, हमारे पास तो पेसर्स रहे नहीं। पेसर्स आप लेके जाएंगे और करेंगे आप इंशाल्लाह, और आप वेट करें शाम तक ताकि पता चल जाए कि टीम सिलेक्शन क्या होती है। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। Exactly. I think that's wonderful. Thank you so much, Shoaib bhai, you know, for your contribution as well, and congratulations to all those Pakistanis that are out there. Thank you so much, Mahin, for being with us. Lovely to be in conversation with you too. For everybody who's out there, Khawateen o Azraz, while we are at it and while we have had a test series win, you know, and that too over England after 2015, maybe after 2021, winning and in our home conditions as well, and kind of being more aware. I think take away from here, जहाँ पे आकिब भाई के हवाले से बात की शोएब अख्तर साहब ने, मेरा ख्याल है कि 3 लड़कों को आपने बिठाया, उसके बाद जिन लड़कों को लेकर ड्रेसिंग रूम, आपका ऑन फील्ड एनवायरनमेंट सब चेंज होता हुआ नजर आया. Didn't take a lot. So ladies and gentlemen, I think from here onwards we really need to build up better, and what we really need to kind of do over here is, Mahin, that we really need to kind of sum it up in a way where things actually play a very conducive role for all of us. So at this point of time, what we really need to do is celebrate our victory. And for now, ladies and gentlemen, until next time, look after yourselves. 1, 2, 3. Definitely game on hai.